Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 8, that is storage devices. So children, we had completed this chapter and we were doing book exercises. So children, we have completed the book exercises also. Today we will be making questions from the middle of the chapter. Before that children, as we always do, we will revise the exercise which we had done yesterday in yesterday's video, and then we will move to the questions from the chapter. So children, कल हमने क्वेश्चन नंबर B किया था और C किया था, उसे हम पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे का एक्सरसाइज करेंगे. सो चिल्ड्रन, कल हमने किया था fill in the blanks after unscrambling the words. Here some blanks are given and some scrambled words are also given. We are going to arrange these words in a proper sequence to make it in a meaningful word, and so that we get the आंसर ऑफ द गिवन स्टेटमेंट. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसका हमको आंसर लिखना है, एंड दैट टू वी विल फाइंड द आंसर फ्रॉम द वर्ड्स गिवन हियर. सो दीज आर scrambled. We are going to arrange these in a proper sequence and write the answer. So children, first answer है, the question is, the hard disk is also called. Children, the hard disk is also known by another name, that is hard drive. hard disk को हम hard drive भी कहते हैं. So answer में we will write hard disk. यहाँ पे hard disk दिया हुआ है, answer में we will write hard drive. So hard disk is also known as hard drive. Now second one children, A, CD-ROM is circular. C-I-R-C-U-L-A-R, circular. So children, our second answer is circular in shape. So the shape of the CD-ROM is circular. So in the blank you will write circular. Then third one children, Dash is the most popular storage device. So children, as we know, we have studied about different types of storage devices in the chapter, but the most common or the commonly used or the popular device is pen drive. Nowadays most of the people use pen drive as a storage device. तो यहाँ पे most popular में हम लिखेंगे pen drive. The most popular storage device is pen drive. Now, so this is question number B. So children, let us learn these spellings which we have come across in this question. Question number B में पहला first word is hard, H-A-R-D, hard, disk, D-I-S-K, disk, or drive, D-R-I-V-E, drive. Then we have another word, second answer है circular, C-I-R-C-U-L-A-R, circular. Then third one is pen drive, P-E-N, pen, D-R-I-V-E, drive. So here we have three answers. Let us learn these answers. Before learning these answers children, in next question also we have some of the terms. Let us read these and write here. So children, next question is question number C में हमने कुछ pictures देखी थी. We saw the picture and identified the picture and wrote their name, और हमने उनका नाम लिखा था. तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट पिक्चर है हार्ड डिस्क का, हम इसे हार्ड डिस्क भी कहते हैं, हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. तो ये स्पेलिंग तो वी हैव ऑलरेडी रिटन हियर. फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ हार्ड डिस्क, एंड चिल्ड्रन, एज we have discussed in the chapter that the hard disk is one of the main storage device. तो हम सबसे पहले जो भी चीज़ स्टोर करते हैं कंप्यूटर में वो हार्ड डिस्क में जाकर के ही स्टोर होता है, क्योंकि वो कंप्यूटर के CPU के अंदर फिक्स्ड होता है. इसलिए जो भी हम कंप्यूटर में काम करेंगे और उसके बाद उसको सेव करेंगे तो वो हार्ड डिस्क में ही जाकर के सेव होता है, इसलिए हम उसको मेन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. लेकिन पेन ड्राइव और CD वगैरह को तो हम एक्सटर्नली हम उसे ऐड करते हैं, अटैच करते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें कुछ भी कॉपी करते हैं और फिर स्टोर करते हैं. लेकिन जो हार्ड डिस्क होता है वो तो ऑलरेडी CD से आपके CPU में अटैच रहता है, इसलिए जो भी हम कंप्यूटर में काम करके सेव करते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में ही जाकर सेव होता है. दैट इज वाई इट इज नोन एज द मेन स्टोरेज डिवाइस. उसके बाद चिल्ड्रन, हार्ड डिस्क हैज large capacity, it has very large capacity to store the data. उसकी जो डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है.
तो कंपेयर टू CD, DVD, पेन ड्राइव से के मुकाबले या कंपैरिजन में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए हम जो भी काम, अधिकतर काम जो भी हम करते हैं कंप्यूटर में अपने इजीली हार्ड डिस्क में हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन जो हार्ड डिस्क है इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव, हम उसको हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। देन चिल्ड्रन सेकेंड पिक्चर इज ऑफ CD-ROM। एज वी नो चिल्ड्रन, C का मतलब होता है कॉम्पैक्ट, D का मतलब होता है डिस्क एंड R का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। Compact disk read only memory. It is also one of the storage device children, and it is one of the secure storage device जिसमें हम easily अपने डाटा को सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक पोर्टेबल डिवाइस है, इट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और इसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज डिवाइस। सो लेकिन हम इसको अलग से ऐड करते हैं, ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होता है। CD-ROM। देन फिफ्थ वाला चिल्ड्रन, फिफ्थ में हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन नंबर C का है, दैट इज द पिक्चर यू कैन आइडेंटिफाई चिल्ड्रन, इट इज पेन ड्राइव। एज वी नो पेन ड्राइव इज वन ऑफ the popularly used storage device, and it is one of the safest storage device, and it is most convenient to carry it from one place to another। हम उसको और भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह कैरी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और इसके टूटने या स्क्रैचेस होने के भी डर नहीं होते। CD के तो अगर वो दब गया तो टूटने का डर होता है, लेकिन CD में स्क्रैचेस पड़ जाते हैं तो भी वो रन नहीं करता और समटाइम्स वो नहीं खुलता है। बट पेन ड्राइव में ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम होने की सबसे कम पॉसिबिलिटीज होती है। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टोरेज डिवाइस अमंग ऑल CD एंड DVD। सो चिल्ड्रन आजकल हम CD कम यूज़ कर रहे हैं, उससे ज़्यादा हम पेन ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं। एंड आपने घर में भी देखा होगा, आपने ज़्यादातर लोग पेन ड्राइव को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है पेन ड्राइव, वी हैव ऑलरेडी रिटन। एंड चिल्ड्रन पेन ड्राइव इज ऑल्सो नोन एज फ्लैश ड्राइव, हम इसको फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। इफ समबडी आस्क यू, इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू द नेम ऑफ एज पेन ड्राइव, आपको पेन ड्राइव की जगह वो फ्लैश ड्राइव यूज़ करें तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आपको पता होना चाहिए कि हम पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं। तो चिल्ड्रन दीज आर सम टर्म्स विच वी हैव कम अक्रॉस। सो चिल्ड्रन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं? What are storage devices? This is the main topic which we have studied in this chapter. Storage, सबसे पहले storage. Children, storage का मतलब होता है keeping something safely for the future use. किसी भी चीज़ को संभाल करके हम आगे चल के यूज़ करें, इसलिए हम रखते हैं, उसे हम storage device कहते हैं। तो हम उसे storage device कहते हैं। तो यहाँ पे उसे हम स्टोरेज कहते हैं, और इन चीज़ों को संभाल के रखने के लिए जिन डिवाइसेस का हम यूज़ करते हैं उनको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सो चिल्ड्रन हियर वी हैव टू टर्म्स, एक है स्टोरेज, STORAGE, स्टोरेज पहला टर्म है स्टोरेज। अब स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संभाल करके रखना ताकि हम उसको आगे चल के या फ्यूचर में यूज़ कर सकें। तो कीपिंग समथिंग सेफली फॉर द फ्यूचर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। अब इसी चीज़ को, इसको स्टोर करने के लिए वी नीड अ ऑब्जेक्ट या फिर कोई डिवाइस हमें चाहिए, तो जिसमें हम स्टोर करके रखते हैं उसको हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो हम यहाँ लिखेंगे DYS। अगर हम अपने वुलन कपड़ों को ट्रंक में रखते हैं तो वुलन कपड़े को संभाल के रखना तो स्टोरेज हो जाएगा, लेकिन ट्रंक क्या है? डिवाइस हो गया। तो हम आपने देखा होगा मम्मी लोगों को कि हमारे वुलन कपड़ों को जब विंटर्स खत्म हो जाते हैं तो उन्हें धूप दिखा करके वो वापस ट्रंक में डाल देती है और उसमें कुछ नेफ्थलीन बॉल्स भी डालती है ताकि वो उसमें कीड़े ना लगे या वो खराब ना हो, और अगले साल फिर हम उन कपड़ों को उसी तरह से यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे चिल्ड्रन इट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ स्टोरेज, इसे भी हम स्टोरेज कहेंगे। और इसी तरह से हम अपने इंफॉर्मेशन को जो कि हमने कंप्यूटर से हमें मिला है उसे भी हम सेव करके रखते हैं, और कंप्यूटर में भी रखते हैं। कंप्यूटर में रखते हैं तो वो हार्ड डिस्क में जाकर के सेव रहता है, और अगर हम एक्सटर्नल कोई भी डिवाइस यूज़ करते हैं तो वो CD हो सकता है, वो DVD हो सकता है या पेन ड्राइव हो सकता है। तो ऑल दीज आर डिवाइसेस। संभाल के रखना को हम स्टोरेज कहते हैं, और जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं
डिवाइस कहते हैं। स्टोरेज के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। सो चिल्ड्रन, आई होप नाउ यू मस्ट बी क्लियर विद दीज टू वर्ड्स। नाउ तो ये है हमारा आंसर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर ऑल द वर्क डन इन कंप्यूटर इज कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। ऐसा एक डिवाइस जिसके में हम अपने कंप्यूटर पे किए गए सारे कामों को स्टोर करके रखते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे दिस इज द डेफिनेशन विच यू हैव रिटन इन योर बुक एंड आई मेड यू राइट इन द प्रीवियस वीडियो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज चिल्ड्रन, सेकंड पार्ट इज नेम डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस। अब आपको स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में पता चल गया, अब आपको इन स्टोरेज डिवाइसेस का नाम बताना है। तो हार्ड डिस्क हो गया, CD रोम हो गया, DVD हो गया एंड पेन ड्राइव हो गया। सो दीज आर द 4 storage devices about which we have studied in the chapter. तो हार्ड डिस्क जो होता है इट इज ऑलरेडी फिक्स्ड इन द कंप्यूटर एंड बाकी के 3 हम उसमें अटैच करके इंफॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर डी चिल्ड्रन। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर ई चिल्ड्रन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। हियर योर टीचर हैज टोल्ड you to has given you 3 DVDs and he or she has asked you to copy these in or store these data in the DVD in anywhere safely. So what will you do? You will store these data in the hard disk of the computer of your स्कूल। आप स्कूल के कंप्यूटर में से आप सेव करोगे ताकि ये सेफली पड़ा रहे। और वो कहाँ जाके सेफ स्टोर होगा? हार्ड डिस्क में स्टोर होगा। तो इन दिस वे यू कैन स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ 3 DVDs। जो 3 DVD आपके टीचर ने आपको दिया है उसको आप यहाँ स्टोर करके अपने स्कूल के कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हो। सो द स्पोर्ट्स टीचर gave 3 DVDs of school's event to Ravi and asked him to save the videos in storage device. What storage device should Ravi use to do it? Ravi will use hard disk of the computer of school to store the data in the 3 storage devices, 3 DVDs. So children, in this way we have completed all the exercises of this book. Now you are going to read the chapter and learn these difficult words. So here are some difficult words children. Hard, 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 DISK, disk, DRIVE, drive, फिर circular, CIRCULAR, circular। circular का मतलब होता है गोल शेप का। जो चीज़ गोल शेप की होती है उसे हम सर्कुलर कहते हैं। ये गोल भी है और फ्लैट भी है, तो ये सर्कुलर शेप की है। इसके बाद पेन ड्राइव, PEN, पेन, DRIVE, ड्राइव। पेन ड्राइव को हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, FLASH DRIVE, फ्लैश ड्राइव। उसके बाद हमारे पास है CD रोम, CDROM, रोम। उसके बाद है स्टोरेज डिवाइस, STORAGE, स्टोरेज, DEVICE, डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। So you will learn these terms which have mostly come in the chapter. So children, this is all with this chapter. Book exercise of the book. Now we will do some questions from the middle of the chapter. Our first question is fill in the blanks. FILL, fill in the blanks. BLANKS, blanks. And first one is, children, first one is computer can dash your work for future use. So first we will write computer can dash your your work for for future future use. So children, as I told you, when I told you about the storage device, children, storage means keeping something safely for the future use. तो स्टोरेज का मतलब ये होता है किसी भी चीज़ को संभाल के रखना ताकि हम उसे फ्यूचर में यूज कर सकें। तो यहाँ पे कंप्यूटर कैन डैश योर वर्क,
can store your work. Here you will write STORE, store your work for future use. जो कंप्यूटर है वो आपके काम को फ्यूचर में यूज करने के लिए स्टोर कर सकता है. सो हियर यू विल राइट STORE, स्टोर. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिल्ड्रन कंप्यूटर COMPUTER, कंप्यूटर से डैश and stores your your files. Computer can dash and stores your files. So children, how will you store your file in the computer? Yes, how do you store your file in the computer? You can store your file only when you save it. तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर saves, HAVES. पहले वो फाइल को सेव करता है, फिर उसके बाद वो उसको स्टोर करता है. तो हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर सेव्स एंड स्टोर्स योर फाइल्स. कंप्यूटर हमारी फाइल को सेव करता है, उसके बाद वो स्टोर करता है. तो आर आंसर इज सेव्स एंड स्टोर द फाइल्स. उसके बाद चिल्ड्रन वी हैव नेक्स्ट वी हैव अ हार्ड डिस्क is the main dash device. So children, a hard disk, a HARD, hard disk, DISK, disk is a hard disk is the THE is the main main dash device. Main dash device. So hard disk is what type of device children? Hard disk is what type of device? Hard disk is a type of storage device. So hard disk is the main storage device. तो हम यहाँ लिखेंगे storage. जो hard disk है main storage device है, तो हम यहाँ लिखेंगे storage. क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं वो उसको सेव करते हैं तो वो सीधा हार्ड डिस्क में ही जाके सेव होता है, इसलिए हम उसको मेन स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. तो यहाँ पे आंसर में यू विल राइट स्टोरेज और डिवाइस तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यू विल राइट स्टोरेज. तो चिल्ड्रन दीज आर द ब्लैंक्स व्हिच वी हैव मेड फ्रॉम द मिडल ऑफ द चैप्टर. लेट अस रीड these before moving to the next one. Computer can STORE, store your work for फ्यूचर यूज. जो कंप्यूटर है आपके काम को फ्यूचर यूज करके के लिए स्टोर कर सकता है. देन कंप्यूटर सेव्स एंड स्टोर्स योर फाइल्स. आप जो भी फाइल बनाते हो, जो भी काम करते हो, उसको पहले सेव करता है, फिर उसको सेव करने के बाद वो स्टोर करता है. सेव करके स्टोर करता है, इसके वजह से इट रिमेन्स इन द कंप्यूटर विदाउट एनी प्रॉब्लम. और जब भी हमें चाहिए हम इजीली उसको ओपन करके यूज़ कर सकते हैं. देन अ हार्ड डिस्क इज द मेन स्टोरेज डिवाइस. जो हार्ड डिस्क होता है वो मेन स्टोरेज डिवाइस होता है, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में काम करके सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क पे जा करके स्टोर होता है. देन चिल्ड्रन लेट अस डू द नेक्स्ट वन. फोर्थ ब्लैंक चिल्ड्रन करते हैं हम. Fourth one, in fourth we will write dash is fixed inside the CPU. Children, dash is fixed inside, in SIDE, side, fixed inside the CPU. What is fixed inside the CPU, children? What is fixed inside the CPU? What is fixed inside the CPU? Yes, as we have studied in the chapter, dash is fixed inside inside SID is side the CPU. That is hard disk. As we know children, hard disk is fixed inside the CPU. तो यहाँ लिखेंगे HARD, हार्ड, DISK, डिस्क. हम यहाँ डिस्क की जगह
ड्राइव भी लिख सकते हैं क्योंकि हम हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं. सो हार्ड डिस्क इज फिक्स्ड inside the CPU. Hard disk is fixed inside the CPU. Then fifth one, children, in fifth we will write dash is used to store large amount of data and information. So children, dash is used to store dash is used to store large amount of, large यानी बहुत ज़्यादा, large amount, AMOUNT, amount of data, large amount of data and information. So children, can you tell me what is that which is used to store large amount of data? What is that? Yes, children, that is hard disk. So here you will write hard disk or drive. Hard disk. Hard disk is a kind of storage device which stores large amount of data in itself. वो अपने आप में बहुत सारा डाटा को स्टोर करके रख सकता है. So the answer is hard disk. Now sixth one, children. अब हम sixth वाला लिखेंगे. अब sixth में हमारे पास है a CD-ROM is dash shaped disk that is used to store data. So children, a CD-ROM, CD-R-O-M, ROM is a CD-ROM is a dash shaped, S-H-A-P-E-D, shaped, dash shaped disk. A CD-ROM is a dash shaped disk. So children, what is the answer? The answer is circular. So you will write here circular, C-I-R-C-U-L-A-R, circular. A CD-ROM is a circular shaped disk. जो CD-ROM होता है एक डिस्क होता है and it is circular in shape. So here you will write a CD-ROM is circular in shape. तो ये भी हो गया. Then children, seventh one, 7 में हम लिखेंगे. 7 में हमारे पास है a CD-ROM is also called a dash disk. So children, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं. ये जो अभी लिखा है उसके बाद हम सेवेंथ वाला करेंगे after rubbing this. So children, here we have hard disk is fixed inside the CPU. Hard disk is fixed inside the CPU. Hard disk is used to store large amount of data. Hard disk is used to store large amount of data and information. Hard disk में हम बहुत ज़्यादा amount of data और information को store कर सकते हैं. Then a CD-ROM is a circular shaped disk. जो CD-ROM होता है वो circular shaped disk होता है. So children, these are the questions and you write it, then I rub it. So children, this you will write in your rough copy and learn it. Then children, next one. Now we'll do seventh one. सेवेंथ में हमारे पास है a seventh dash is also called C-A-L-L-E-D, called a portable, P-O-R-T-A-B-L, portable disk. D-I-S-K, disk, portable disk. So here you will write C-D-R-O-M, portable disk. So children, here you will write portable disk. या blank can be. CD-ROM is a, अगर हम पोर्टेबल CD की जगह ब्लैंक नहीं लगाएंगे तो हम पोर्टेबल में भी ब्लैंक लगा सकते हैं. A CD is also called a portable, a dash disk, पोर्टेबल डिस्क, क्योंकि पोर्टेबल डिस्क DVD भी है
तो प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा हम पोर्टेबल में भी यहाँ पे ब्लैंक लगा सकते हैं और वी कैन राइट द आंसर। नाउ 8th वन चिल्ड्रन, 8th में हमारे पास है कि a CD-ROM can dash data from one computer to another. A CD-ROM, a CD-ROM, ROM helps to dash data from from one computer to another. So children, if you want to transfer data from one computer to another, we use CD-ROM. तो यहाँ पे हम लिखेंगे transfer, TRANSFER. So this is the difference between DVD, CD or pen drive and द हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर सकते, इसलिए उसे हम पोर्टेबल नहीं कहते और इसीलिए हम उससे डाटा को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ कंप्यूटर CPU में अटैच रहता है, तो सिर्फ वो स्टोरेज का ही काम कर सकता है, ट्रांसफ़र का काम नहीं कर सकता। लेकिन हम DVD, CD या पेन ड्राइव से डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज devices are portable and they are easy to carry. Why they are portable? Because they are easy to carry. तो यहाँ पे हम लिखेंगे the CD-ROM helps to transfer data from one computer to another. जो CD-ROM है हमें help करता है to transfer data from one computer to another. So this is 8th one. Now you will do 9th one. So children, here is the 9th one. 9th one we can do a DVD stands for a word DVD stands for dash. So you will write here digital, DIGITAL, digital video disc stands for digital video disc. DVD stands for digital video disc. D for digital, V for video and D for disc. So this is question number 9. DVD stands for digital video disc. Now children, last one is, that means 10th one is, 10th हम 7th में डाल करके 10th करते हैं। So 10th में हम लिखेंगे dash has, 10th one, dash has large, LARGE, large storage capacity. Has large storage capacity as compared to a CD-ROM. So children, as we know, there is very minor difference between CD and DVD. As I told you while explaining the chapter, that there is very little difference between CD and DVD. CD और DVD में बहुत ज़रा सा फ़र्क होता है, और ये जो फ़र्क है चिल्ड्रन, इट इज़ ओनली दैट DVD कैन स्टोर लार्ज डाटा इन इटसेल्फ, whereas as compared to the CD. इसलिए यहाँ you will write dash has large storage capacity as compared to a CD-ROM. So here you will write DVD, क्योंकि CD और DVD में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वो है स्टोरेज कैपेसिटी। जो DVD की स्टोरेज कैपेसिटी होती है CD के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। सो अ DVD हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एज कंपेयर्ड टू अ CD-ROM. So children, these were some of the fill in the blanks which we have made from the middle of the chapter. Go through these exercises which we have done today, and we will meet once again in our next video. Till then, thank you.